Hello viewers, I am Deepthi. Last year I had made a video on police and it was appreciated by many of you. Since then I have been thinking to make a video on livers, but this topic was related by council for the last 2 years. But luckily this topic has been added this year and I am able to make a video on this topic. Hope you will equally like and appreciate it. A lever is a rigid, straight or bent bar capable of rotating about a fixed axis known as axis of rotation, and the point about which the lever turns is known as fulcrum because this is the fixed point. Lever works on the principle of moment according to which the moment of load about the fulcrum is equal to the moment of effort about the fulcrum. And according to the given diagram, the clockwise moment of the load about the fulcrum is equal to anti-clockwise moment of the effort about the fulcrum in the equilibrium position. So according to principle of moment, the clockwise moment of the load about the fulcrum should be equal to the anti-clockwise moment of effort about the fulcrum. It means moment of load is equal to moment of effort, and moment of load is equal to load into load arm is equal to effort into effort arm. So load upon effort is equal to effort arm divided by load arm. Now we know for levers, MA is equal to load upon effort, which is in the case of lever equal to effort arm upon load arm. For simplicity, we can write them DE and DL. So L upon E is equal to DE upon DL. So in the numerical, we can use simply this formula. For mechanical advantage of a lever, it is equal to load upon effort, and here load upon effort is equal to the distance covered by effort divided by distance covered by load. Yeah, effort arm divided by load arm. So this is our effort arm and this is our load arm. Remember, effort arm हमारा numerator में रहेगा और load arm हमारा denominator में रहेगा. This is the formula for MA in the case of lever. Now coming to the kind of lever. There are three kinds of levers. Class 1, then class 2 and then class 3. In class 1, fulcrum is in the center and load and effort are in the opposite sides. Fulcrum should not exactly be in the center. It is in between load and effort, anywhere in between them. And in the second class lever, load is in between fulcrum and effort. So exactly not in between. And then class 3, effort is in between fulcrum and load. Exactly not in center in all the three cases. So depending on these cases, where fulcrum lies, where effort lies, where load lies, we will calculate all the distance with respect to fulcrum. So MA is equal to 1, is less than 1, is greater than 1. Three possibilities are there. Let us try to understand class 1 lever where fulcrum is in between load and effort, and the distance of load from the effort is known as load arm and distance of effort from the fulcrum is known as effort arm. So here three cases arises in case of class 1 lever. First case, when length of effort arm is equal to length of load arm. Both are equal. So in this case, MA, as we know what is the formula of MA? DE upon DL. So it means both are equal, and in ideal situation, VR is equal to MA. So both are equal to 1. And example of this is physical balance. Physical balance is the example where both lengths are equal. Now second case arises where effort arm is shorter than load arm. Now MA is equal to DE upon DL. DE means numerator. तो न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आंसर हमारा क्या आएगा? इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1. सो न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इट मीन्स आंसर लेस देन 1 आएगा. तो MA equal to VR in ideal situation and both are less than 1.
and this type of lever acts as a speed multiplier, or you can say gain in speed or velocity multiplier. Example, pair of scissors, and many more examples also. Let us try to understand pair of scissors. Here you can see this is the fulcrum. So fulcrum is in between, but effort arm is smaller. Effort arm is smaller than load arm. Blades are longer than the effort, means handle, than the handle. So when we apply small effort, we can easily cut the paper or cloth, because the length or distance covered by blade, it means load, is more, and distance covered by effort is less. So this type of machine acts as a speed multiplier in which we gain in speed. Second example of this is while rowing a boat. This is a boat and this is a oar. So while rowing a boat by a single person, you can see here the load is in the water. So this is the fulcrum point. This is the fixed point fulcrum, and when we apply effort by rotating the oar, so here fulcrum is in between, effort is in my hand. So this effort arm is smaller and load arm is longer. So effort arm is smaller. So we will get a gain in speed here, and this boat will move faster in water. The third possibility in class 1 lever is when effort arm is greater than load arm. So in case of MA, it means numerator is greater than denominator. It means its value is greater than 1. So MA is greater than 1, as well as in ideal situation, VR is also greater than 1. So this type of machine always acts as a force multiplier. हमारे फोर्स को मल्टीप्लाई करेगी, हम एफर्ट कम लगाएंगे और ज्यादा लोड को ओवरकम कर पाएंगे. इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आती है शेयर की, जिससे हम मेटल कट करते हैं. तो आप उसमें देखते हैं, उसमें आगे का मेटल कटने वाला जो ब्लेड होता है वो छोटा होता है, जबकि एफर्ट उसमें बड़ा होता है. जैसे अभी हमने सीजर में क्या देखा कि सीजर में आपके पास जो एफर्ट आर्म थी वो स्मॉलर थी और लोड आर्म बड़ी थी. शेयर में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आपकी एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा और लोड आर्म छोटा हो जाएगा, जिससे हमें वहां पर फोर्स मल्टीप्लायर का पर्पस सॉल्व हो जाएगा. और दूसरा एग्जांपल इसमें आता है क्रोबार का, जिसे हम यूज करते हैं स्टोन्स को लिफ्ट करने के लिए. इसके अलावा हम क्लॉ हैमर भी यूज कर सकते हैं. क्लॉ हैमर में भी देखिए आप, अगर कोई भी आपको नेल निकालना है तो क्लो हैमर जब हम लगाएंगे तो ये जो नेल है इसमें लोड का काम करेगा, और फलक्रम यहाँ इन दोनों के बीच में फिक्स पोजीशन पे यहाँ पर आएगा. तो फलक्रम जब यहाँ आया और यहाँ पर हमने इस पे लोड लगाया, इट मीन्स क्या होगा, यहाँ से लोड आर्म बहुत छोटी होगी और आपके पास एफर्ट आर्म इतनी बड़ी है, हमें इसको और पीछे से पकड़ना है. तो एफर्ट आर्म जितनी बड़ी होगी उतना हम आराम से उसको बाहर खींच पाएंगे, आराम से निकाल पाएंगे. तो यहाँ पर मशीन कैसे काम कर रही है, हमारे एफर्ट मल्टीप्लायर की तरह. ये हमारे फोर्स को मल्टीप्लाई कर रही है, फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा उस केस में हमारा. और इसकी और एग्जांपल्स क्या आ जाती है, प्लायर. तो प्लायर के केस में भी सेम ये चीज है, जो लोड है वो हम यहाँ लगाएंगे. प्लायर का फलक्रम कहाँ आएगा, जहां से ये चीज मूव कर रही है. आप देख लो यहाँ पर इसका फिक्स पॉइंट होता है फलक्रम, ये जिसपे हम इसको रोटेट करते हैं. और एफर्ट जो मेरे हाथ पे है, एफर्ट हाथ में है, ये लोड है. अगर मेरे को वायर को छिलना है या वायर को काटना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे. तो ये क्या हुआ, लोड आर्म छोटी सी है और एफर्ट आर्म बड़ी है. इट मीन्स यहाँ पर ये कैसे काम करेगा, हमारे फोर्स को मल्टीप्लाई करेगा, यानी फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा. मीन्स लेस एफर्ट टू ओवरकम अ लार्ज लोड. तो हम इजीली काम को कर पाएंगे. इसकी और एग्जांपल में आ जाता है, यूज टू ओपन द लिड ऑफ ए कंटेनर. मान लीजिए हमने स्पून की मदद से कंटेनर को खोलना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको लगाएंगे, फिक्स करेंगे. यानी कि यहाँ पर हमारा ये क्या होगा, जो फिक्स पॉइंट होता है वो क्या होता है, फलक्रम होता है. और जो हम लिड उठा रहे हैं वो हमारा लोड है. तो लोड आ जाएगा, यहाँ से फलक्रम आ जाएगा फिर में हमारा. तो ये उधर वाला सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन हमारा लोड आर्म है, यानी जहां तक ये स्पून टच करेगा उतना छोटा सा हमारा लोड आर्म होगा. और एफर्ट जहां तक हम इसको लास्ट तक पकड़ रहे हैं, तो यहाँ से हमने ऐसे करके ऊपर उठाया तो ये चीज हमारी खुल जाएगी. तो अब ये क्या बना हमारा, इस केस में आप खुद देखिए, यहाँ पर फिक्स था. इट मीन्स हमारा यहाँ सेंटर में यहाँ पर फलक्रम आएगा और लोड आर्म बहुत छोटी सी है और एफर्ट आर्म बहुत बड़ी हो जाएगी. एफर्ट आर्म लॉन्गर देन शॉर्ट लोड आर्म होगा हमारा. तो यहाँ पर भी ये हमारे लिए कैसे काम करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा.
तो इसमें ये सारी चीजें जो अभी हमने पढ़ी हैं, इन सब में ये क्लास 1 की ही एग्जांपल है, क्योंकि सब में फल्क्रम बीच में ही है। बस फर्क क्या हुआ है कि लोड आर्म शॉर्टर हो गई है, एफर्ट आर्म बड़ी है, तो वो यहाँ पर स्पीड मल्टीप्लायर की तरह नहीं बल्कि फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगी। तो अब हमने क्लास 1 के जो 3 केसेस देखे, फर्स्ट केस में हमारा एम ए इक्वल टू 1 था, तो वो हमारा डायरेक्शन के लिए यूज होता है। एम ए लेस देन 1 आएगा और एम ए ग्रेटर देन 1 आएगा। अभी हमने देखा एम ए ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स वो वहां पर फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। जब एम ए लेस देन 1 आया था तो वो हमारा गेन इन स्पीड की तरह काम करेगा, यानी कि स्पीड मल्टीप्लायर, और यू कैन से वेलोसिटी मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। और एम ए ग्रेटर देन 1 है तो ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। तो कुल मिलाकर क्लास 1 की समरी क्या है कि इसमें ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। This is a simple seesaw, but showing you a system of lever. Here, this is the shorter arm and this is the longer arm. In this seesaw, both arms are equal. So, fulcrum is in between. And this is a seesaw where you can see this arm is longer. On my side, this is longer arm and that side is shorter arm. So, can you imagine in which case you will apply a more load than your effort? Now come to the discussion of class 2 lever. Now in class 2 lever, you can see load is in between. Load is in between fulcrum and effort and all the distances are made from the fulcrum. तो लोड आर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी, जितना ये है हमारे पास एफ बी लोड आर्म है, और एफर्ट आर्म कितनी है, पूरा फल्क्रम से लेकर यहाँ तक। इट मीन्स हमारी एफर्ट आर्म ऑलवेज ग्रेटर देन होगी लोड आर्म इन केस ऑफ क्लास 2 लीवर, हमेशा ही बड़ी होगी। और अभी हमने क्या देखा था कि इस केस में एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा तो एम ए हमारा डी ई अपॉन डी एल जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। इट मीन्स एम ए इस केस में ऑलवेज ही ग्रेटर देन 1 होगा, इन आइडियल कंडीशन वी आर भी ग्रेटर देन 1 होगा। तो एम ए ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है, ऐसी मशीन कैसे काम करेगी, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं जिनमें लोड सेंटर में होगा, एफर्ट एक साइड में होगा और फल्क्रम एक साइड में होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स में अगर हम बात करेंगे तो नट क्रैकर आता है, जिसमें हम उसको ऐसे प्रेस करते हैं और नट बीच में होता है तो आपके पास नट जो है वो क्रश हो जाता है। बेसिकली फोर्स मल्टीप्लायर का काम ही क्या है, लेस एफर्ट टू ओवरकम अ लार्ज लोड। तो इसमें हमारा व्हील बैरो का भी एग्जाम्पल आ जाता है, और इसके अलावा हम इसमें बॉटल ओपनर की भी एग्जांपल ले सकते हैं। बॉटल ओपनर के लिए जैसे आपने इस तरह से बॉटल ओपनर को लिया और आप उसके लिड पर लगाएंगे, आप कोई भी बॉटल ले सकते हो, जब आप उसको ऐसे करके ऊपर पुश करेंगे तो आपके पास ये जो पॉइंट आएगा, यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट आ जाएगा वो आपने बीच में टच किया है। इट मीन्स आप खुद देखिए कि लोड आपका सेंटर में टच हो रहा है, बीच में आ रहा है, और एफर्ट आपके हाथ में इस तरफ आ रहा है, एफर्ट आपके हाथ में है, लोड यहाँ पर आ जाएगा, और फल्क्रम मीन्स आप जहाँ इसको टच करा रहे हो वो टच पॉइंट जो है वो फल्क्रम हो जाएगा, तो वो हमारा एक किनारे पे चला जाएगा, लोड सेंटर में आ जाएगा। तो बॉटल ओपनर हमारी इसी चीज की एग्जांपल आ जाती है क्लास 2 लीवर की। इसके अलावा लेमन क्रशर, लेमन क्रशर में देखिए आप क्या होता है, लेमन क्रशर में भी सेम यही चीज होगी, आपका फल्क्रम यहाँ पर चला गया, जहां से फिक्स पॉइंट है वो फल्क्रम है, फल्क्रम यहाँ है, लेमन आपने सेंटर में रखा और लेमन को जब आपने क्रश किया तो एफर्ट आपका यहाँ पर आएगा, इस तरफ आएगा। इट मीन्स एफर्ट आर्म आपकी लॉन्गर है, एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। लोड आर्म इतनी सी है क्योंकि हम फल्क्रम से सारे डिस्टेंसेस लेंगे, तो लोड आर्म कितनी लेंथ है, लोड आर्म की लेंथ ये है, और एफर्ट आर्म की फल्क्रम से यहाँ तक की पूरी लेंथ आएगी। तो आप खुद देखिए एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, इट मीन्स हमारा फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे और ज्यादा लोड को ओवरकम कर पाएंगे, अच्छे से लेमन को क्रश कर पाएंगे। ऐसे ही पेपर कटर इसकी एग्जांपल आ जाती है, या बार यूज टू लिफ्ट लोड, या इसके अलावा डोर भी हो सकता है। डोर में आप क्या करते हैं, डोर में एक तरफ हिंज आते हैं और एफर्ट आपके हाथ में हैंडल जो होता है वो बिल्कुल अपोजिट एंड पे होता है, जिसकी आपने मोमेंट ऑफ टॉर्क में भी एग्जांपल देखी हुई है। तो डोर में भी आपका हिंज जितना दूर होगा तो उतना आपके एक तरफ क्या आ जाता है, एफर्ट आपके हाथ में आ गया, हिंज एक साइड में फल्क्रम है और लोड यानी दरवाजा बीच में है, तो लोड सेंटर में है, एफर्ट आपके हाथ में जहां हैंडल है वहां पर है, और आपका फल्क्रम जो है फिक्स पॉइंट जहां पर हिंजेस लगे हुए हैं वहां पर आ गया। तो डोर भी हमारा क्लास 2 की एग्जांपल में ही आ जाता है। One more example of class 2 lever, which is mango cutter. Mango is in between this blade and this is effort in my hand and this is the fixed point known as fulcrum. So fulcrum at one end, fulcrum at one end, load is in between, it means mango is in between. मेरे पास mango नहीं है, मैंने potato लगाया है और यहाँ पर effort हो गया मेरे हाथ में,
ठीक है। तो जब हम एफर्ट लगाएंगे, बीच में मैंगो जो लोड का काम करेगा, हम थोड़ा सा भी इसके अपने एफर्ट से इसको लगाएंगे तो आराम से ये कटता जाएगा। तो आराम से ये देखिए आप कट गया, ये हमारा लोड है, जो सेंटर में है ये लोड है। अब आप खुद देखिए, डिस्टेंस ऑफ लोड फ्रॉम द फल्क्रम, दिस इज नोन एज लोड आर्म, इट मींस लोड आर्म इज स्मॉलर एंड एफर्ट इज इन माय हैंड, दिस होल इज एफर्ट आर्म, सो एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ी हो जाएगी, तो जब एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ी हो जाएगी तो एम ए ग्रेटर देन 1 होगा। इट मींस यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम होगा कि आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे और आप ज्यादा सारे लार्ज लोड को ओवरकम कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 2 का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्लास 3 लीवर। अब क्लास 3 लीवर में सेंटर में कौन है, आप खुद बताइए। क्लास 3 लीवर में एफर्ट सेंटर में है। इनको लर्न करने के लिए हमारे पास एक वर्ड आ जाता है जिसमें हम एफ, एल और ई ले लेते हैं। यानी कि अगर फल्क्रम सेंटर में है तो ये क्लास 1 लीवर है, अगर लोड सेंटर में है तो ये क्लास 2 लीवर है, और अगर एफर्ट सेंटर में है तो ये क्लास 3 लीवर है। अब आप देखिए, क्लास 3 लीवर में भी मेरा एफर्ट आर्म इतना है, जितना फल्क्रम से डिस्टेंस है ये एफर्ट आर्म है, और लोड आर्म इस केस में हमारी यहां तक जा रही है। इट मींस क्लास 3 लीवर में हमारे पास क्या होगा, हमेशा ही क्लास 3 लीवर में मेरी लोड आर्म बड़ी होगी, एफर्ट आर्म शॉर्टर होगी, क्योंकि फल्क्रम तो कॉर्नर में ही है और हमने सारे डिस्टेंसेस फल्क्रम से ही लेने हैं। तो इट मींस इसमें लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म हो जाएगा। इट मींस एम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी अपॉन डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बताइए। अब डी ई अपॉन डी एल, अब डी एल बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इट मींस इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। अगर एम ए लेस देन 1 है तो वी आर भी लेस देन 1 होगा, और हमने क्या देखा था कि एम ए वी आर अगर लेस देन 1 होता है तो ऐसी जो मशीन होती है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, गेन इन स्पीड के लिए। इट मीन स्पीड मल्टीप्लायर, या फिर हम इसको वेलोसिटी मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं, गेन इन स्पीड भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। ये सारे वर्ड्स हमारे क्लास 3 लीवर के लिए बने हैं, क्योंकि इसमें हमारी स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि डिस्टेंस मूव बाय लोड जो है वो ज्यादा आ रहा है। आप खुद देखिए, डिस्टेंस मूव बाय लोड जो है वो ग्रेटर है बजाय कि डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। So in class 3 lever, larger displacement of load is there by smaller displacement of effort, because effort arm is, this is fulcrum, this is effort, this is effort arm is smaller and load arm is bigger. So effort is in between fulcrum and load, but load arm is bigger than effort arm, and when load arm is bigger than effort arm, this will act as a speed multiplier. Or in the case of a fire tongue also, you can see fire tongue, here I am applying effort. So this is the fixed point fulcrum, and this whole tongue, length of the whole tongue act as a load arm. So load arm is bigger, मैं जो भी लोड वहां से चपाती पिक करूंगी, फायर में से कुछ भी लूंगी, वो ये पूरा लोड आर्म का काम करेगा। तो लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, इतना है, लोड आर्म ये पूरा है, तो एफर्ट आर्म आपका छोटा बन रहा है, इसमें लोड आर्म बड़ा बन रहा है, यानी लार्जर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज ऑब्टेन्ड बाय स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। इट मींस यहाँ भी हमारे मशीन जो है वो स्पीड मल्टीप्लायर की तरह ही काम करेगा। सेम एग्जांपल फॉर द क्लास 3 लीवर, लेकिन इस बार नाइफ दूसरा है। नाइफ दूसरा है मींस मेरा लोड अब इसके एक एज पे आ गया, लोड एक एज पे है, ये जो फिंगर आ गई मेरी, ये एफर्ट सेंटर पे लगा रही हूं मैं, एफर्ट सेंटर पे आ रहा है और लोड हमारा एक सिरे पे आ गया, और जो फल्क्रम है वो मेरे दूसरे हाथ में फिक्स है। देखिए अंदर की फिंगर्स के साथ मैंने यहाँ पर फल्क्रम लगाया हुआ है, ये फल्क्रम हो गया, यहाँ पर मेरा एफर्ट हो गया, और ये मैं लोड अगर यहाँ से लोड लूंगी तो अब हम इसको अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये यहाँ से कट हुआ। इट मीन्स यहाँ पर आप खुद देखिए कि फल्क्रम ये पूरा था और पूरे के साथ ही लोड आर्म पूरा एंड तक जाएगा, लोड आर्म पूरा बड़ा है और एफर्ट आर्म छोटा है। जब एफर्ट आर्म छोटा है और लोड आर्म बड़ा है तो एफर्ट आर्म छोटा है और लोड आर्म बड़ा हो जाएगा, तो हमारा मशीन किसकी तरह काम करेगा, स्पीड मल्टीप्लायर की तरह, यानी ये क्लास 3 की एग्जांपल हो जाएगी आपके पास में। तो हम वही कटिंग कर रहे हैं, क्लास 2 की एग्जांपल है जब मैं इस ब्लेड को यूज कर रही हूँ, और क्लास 3 की एग्जांपल होगी जब मैं इस नाइफ को यूज करूंगी। Another example of class 3 lever is spade, used to lift the load, either coal or soil, anything you can lift with the help of a spade। तो उसमें भी हम एफर्ट बीच में रखते हैं और फिर हम करते जाते हैं, तो एफर्ट क्योंकि बीच में होता है, तो एफर्ट अगर बीच में है तो ये हमारा क्लास 3 का एग्जाम्पल होता है। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ क्लास 3 लीवर इज, क्या होगा, शॉर्ट हैंडल ओर वाला, जो बोट रेस में यूज होता है। जब हमने बोट रेस करी, मान लेते हैं ये बहुत सारे बोटमैन बैठे हुए हैं इसके अंदर, मल्टीपल बोटमैन आर देयर, आई एम शोइंग ओनली 3, तो यहाँ पर आपके पास ये बोटमैन है। अब क्या होगा, ये
ओर को, शॉर्ट हैंडल ओर को पकड़ेंगे, शॉर्ट हैंडल ओर को ये अपने एक लेफ्ट हैंड से फिक्स पकड़ लेंगे और सिर्फ उसको यहाँ से या इस पॉइंट से एफर्ट लगाते जाएंगे और लोड यानी कि पानी को पीछे करते जाएंगे। ये एंड उनका फिक्स रहेगा एक हाथ में। तो ये इस तरह से ऐसे पीछे होता जाएगा। और बोट रेस में जब सारे यूनिसन के साथ बोट रो करेंगे तो आप खुद देखिए, ये आपका ओर का एक एंड जो है वो एक लेफ्ट हैंड से फिक्स है, लेफ्ट हैंड से फिक्स हो गया, यानी ये हमारा फिक्स वाला मतलब फल्क्रम पॉइंट हो गया। और यहाँ हमने एफर्ट लगाया तो एफर्ट आर्म हमारी शॉर्टर है, एफर्ट आर्म शॉर्टर है, बस हम उसको ऐसे ऐसे करते जाएंगे, पानी को बार बार पीछे करते जाएंगे, ओर को लिफ्ट करेंगे पानी को। और जब सबके सब बोटमैन एक यूनिसन के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली वो बोट रेस में जीत जाएंगे, क्योंकि उनको गेन इन स्पीड मिल जाएगा, क्योंकि वो क्लास 3 की तरह काम करेगा। आपका एफर्ट बीच में आ जाएगा, आपका फल्क्रम ये लेफ्ट हैंड हो गया, एफर्ट आपका यहाँ हो गया, यानी एफर्ट आर्म आपकी ये है। अब आप फटाफट फटाफट चलाते जाएंगे और जब आप एक उसमें रिदम में चलाएंगे तो आप ऑब्वियसली जीत जाएंगे। तो ये हमारी क्लास 3 की एक और एग्जांपल होगी। This is the system of lever. Here you can see this is the point fixed, which is fulcrum. Now here I can apply effort. So this is effort point in between, and this is load. So first of all, tell me which type of lever is this when effort is in between fulcrum and load. And three different systems are showing here, because you can see the point of effort is going to change. First effort point is from the fulcrum. So this is the shortest effort arm. Now this is the longer and this is the longest effort arm. Now tell me in which case it is easier for us to apply effort. Now example of lever in our body, in our human body. First example of class 1 lever is action of nodding of head. जब हम हेड नॉडिंग करते हैं तो इट मीन्स हमारा जो ये स्पाइन है, पीछे स्पाइन का जो एंड आ जाएगा, ये एक्ट कैसे करेगा, फल्क्रम की तरह, क्योंकि वहां पर फिक्स है, तभी हम गर्दन नॉड कर रहे हैं। वैसे आजकल के बच्चों ने हाँ में हाँ मिलाना तो ज्यादा नहीं सीखा है, बट हाँ अगर आप हाँ में नॉडिंग कर रहे हो तो वो क्लास 1 लीवर की एग्जाम्पल है, जिसमें स्पाइन जो है वो हमारा फल्क्रम की तरह काम करेगा, लोड जो है वो हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा और एफर्ट जो है वो हमारे रियर पार्ट में पीछे की तरफ में आ जाएगा। तो ये क्लास 1 की एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसी क्लास 2 कौन सा होगा, जब रेजिंग द वेट ऑफ द बॉडी ऑन टोज, आप पंजे के बल पर खड़े हो तो आपका पूरा बॉडी का वेट जो है वो आपके टोज के ऊपर आ रहा है। इट मींस आपका जो फल्क्रम है वो टोज बन जाएंगे, आपका लोड जो है वो मिडल में आ जाएगा और आपका एफर्ट जो है वो कहाँ लग रहा है, जहां आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं अदर एंड पे, तो वहां पर आपका एफर्ट आ जाएगा। तो वो क्लास 2 की एग्जाम्पल हो जाएगी, क्योंकि लोड बीच में आ गया है। एंड क्लास 3 एग्जाम्पल इज रेजिंग ए लोड बाय फोर आर्म। आपने फोर आर्म से किसी लोड को रेज किया है, उठाया है। अगर आप सफिशिएंट एफर्ट नहीं लगाओगे तो आपका हाथ नीचे आ जाएगा। तो इधर आपका ये लोड है, इस तरफ आपका ये लोड लग गया। अब इधर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ई जो है वो क्या आएगा, मिडल ऑफ द बाइसेप में। यहाँ पर मिडल ऑफ द बाइसेप में आपका एफर्ट लग रहा है और फल्क्रम आपका फिक्स पॉइंट जो है ये एल्बो जॉइंट हो जाएगा और ये आपका लोड है। तो ये लोड हो गया, इधर हमारा एल्बो जॉइंट जो है ये फिक्स है, यानी ये फल्क्रम है, और एफर्ट जो है वो बीच में बाइसेप मसल पे लग रहा है। यानी एफर्ट के लिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एफर्ट इज द बाइसेप मसल इन बिटवीन द एल्बो एंड द पाम। एल्बो एंड द पाम दोनों के बीच में यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा एफर्ट। तो एफर्ट इन बिटवीन है, इसलिए क्लास 3 की एग्जाम्पल हो जाएगा। Hope you have understood the concept of lever in a very excellent way with the help of my video. If you still have any doubt, you can tell me in the comment section. वैसे तो मैंने फिजिक्स ICSE क्लास 10 के हर टॉपिक को अपने वीडियोस में कवर किया है। If you still need a topic to be made in a video made by me, then you can tell me in the comment section. I will definitely try to make a video on the topic of your request. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Thank you.